Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the part 5 of PYQ series for your upcoming CSI NET examination. I have already completed the 4 lectures. I will provide the link in the description box so that आप उन videos को भी देख सकें. And I have also provided the PDF notes of this series in the Telegram channel. So you can visit to my Telegram channel and download the PDF. So today I have taken the question from the development biology. This was asked in December 2019. This question was asked in part B and this is one of the very simple question. अगर आपने development biology एक बार भी basic पढ़ा होगा, you can answer this question. So which one of the following is not typical movement pattern observed during gastrulation? So कौन सा ऐसा type of movement है जो gastrulation में नहीं observe होता है? So we know during the gastrulation we form 3 different layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. तो different movement of cell होता है जिसकी तरफ से ये तीनों layer formation होती है and each of the layer give rise to their individual organs like mesoderm form the bones or the blood cells other things. Similarly endoderm से भी कुछ organs का formation होता है and ectoderm जो है epithelial cells को form करता है later on. So this was observed during the gastrulation. So इसमें से involution we can observe during gastrulation. Epiboly, this is important process of formation of ectoderm. It is also important and observed during gastrulation. But we never observe the furrowing. Furrowing कभी भी gastrulation के duration में नहीं देखा जाता है and delamination is also observed. So the correct answer is third. But the concept behind choosing this question so that आपको और चीज़ों का idea रहे. So this is the table. You have to remember the type of movement given. 5 टाइप के मेन मूवमेंट्स होते हैं. देन डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस मूवमेंट एंड यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे इन मूवमेंट को समझाया गया है एंड द एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर. दीज एग्जाम्पल आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है. आइदर इट कैन बी आस्क्ड की स्टेटमेंट में लाइक द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म इन सी अर्चिन टेक प्लेस थ्रू इन्वॉल्यूशन, बट इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इट टेक प्लेस थ्रू द मूवमेंट ऑफ इन्वेजिनेशन. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल. So first we will see invagination में क्या होता है. So for each movement you have to remember some terms. Like in case of invagination, whenever the question will be asked, infolding term will be there. So infolding of a sheet of cells. तो क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल है, शीट ऑफ सेल है, वो इनफोल्ड करेंगे, मीन अंदर की तरफ मूव करेंगी. लाइक एक सॉफ्ट रबर बॉल है, उसमें हम उंगली डाल के अंदर को पोक करते हैं, उस तरीके का मूवमेंट आपका इन्वेजिनेशन में होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर इन्वेजिनेशन, इनफोल्डिंग ऑफ द लेयर and it take place in the sea urchin endoderm. The second one is involution. So involution में क्या होगा? Inward movement of expanding outer layer so that it spread over an internal surface of remaining external cells. मीन यहाँ पे क्या है कि आपका एक एक्सपेंडिंग आउटर लेयर की सेल्स है वो अंदर की तरफ को मूव करना शुरू कर देगी. ठीक है, यहाँ पे एक सेल थी, ब्लू कलर की सेल्स की लाइन थी जो अंदर की तरफ को मूव करना शुरू कर दिया और इसने क्या किया, एक इंटरनल लेयर फॉर्मेशन कर दी. मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग आउटर लेयर्स. तो ये अंदर की तरफ मूव करेंगे इस तरीके से. यहाँ पे एम्फीबियन के मेसोडर्म में ये देखा जाता है. देन द थर्ड इज इनग्रेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर इनग्रेशन विथ माइग्रेशन. यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल सेल माइग्रेट करती हैं फ्रॉम द सरफेस टू द एम्ब्रियो इंटीरियर और ये सेल्स मीजनकाइंड का फॉर्मेशन करती हैं. ठीक है, और इनका जो माइग्रेशन होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, कोई डिपेंडेंट माइग्रेशन नहीं होता है. सो इट कैन बी आस्क्ड कि इन द ड्यूरिंग द माइग्रेशन in ingression the cells migrate independently or their migration is dependent on each other. It can be also asked in the statement based questions. तो यहाँ पे जो माइग्रेशन होता है इंडिपेंडेंट होता है और ईच सेल माइग्रेट करके अंदर की तरफ एक मीजनकाइमल सेल या मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस की एग्जाम्पल सी अर्चिन का मीजोडर्म है और ड्रोसोफिला का न्यूरोब्लास्ट है. देन डी लैमिनेशन में आपको जो टर्म याद रखना है वो है स्प्लिटिंग. तो एक जो सेल का जो शीट है वो 2 या उससे कम शीट में डिवाइड हो जाता है. यहाँ पे जो आउटर लेयर की शीट है यहाँ पे पहले शीट बना दे रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक न्यू शीट का फॉर्मेशन होगा. ये इसका जो सेलुलर बेसिस है वो भी इंग्रेशन की तरह सिमिलर है, बट यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है इपीथीलियल शीट ऑफ सेल का होता है, जबकि वहाँ पे मिजनकाइमल सेल बन रही थी. सो यू हैव टू रिमेंबर कि डी लैमिनेशन में इपीथीलियल शीट ऑफ सेल बनती है एंड यहाँ पे मिजनकाइमल सेल बनती है इन द इंग्रेशन. देन द लास्ट मूवमेंट इज एपीबोली. इसका भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है. हाइपोफ्लास्ट फॉर्मेशन इन द बर्ड एंड मैमल्स. एपीबोली में आपका एक्टोडर्म फॉर्मेशन होता है, चाहे वो सी अर्चिन हो, ट्यूनिकेट हो, एम्फीबियन हो. सो एपीबोली में क्या होगा कि जितनी भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, सपोज ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये पूरा अंदर वाली जो डीपर लेयर्स की सेल्स हैं उनको कवर अप कर लेंगी, तो इनक्लोज द डीपर लेयर ऑफ एम्ब्रियो.
जो उसकी जो डीपर लेयर की सेल्स हैं उनको इनक्लोज कर लेंगी, सो दैट एक एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो सके। सो यहाँ पे कैसे कैसे एपिबोली होती है, इट कैन बी कि सेल डिवाइड कर रहे हैं इसकी वजह से, मतलब बहुत सारी सेल्स बन रही हैं और वो क्लोज कर ले रही हैं, ये एपिबोली को फॉर्म कर सकता है। या फिर सेल अपना शेप चेंज कर रही हैं, ऐसे शेप को कवर कर ऑब्टेन कर रही हैं जिसके थ्रू पूरा कवर अप हो जाए अंदर वाला सरफेस। या फिर बहुत सारी सेल्स, सपोज बहुत सारी लेयर ऑफ सेल्स हैं, वो मिलके एक कुछ लेयर ऑफ सेल्स को बना रही हैं, तो इस तरीके से बेबी बॉली हो सकती है। सो इट कैन बी अकर बाय 3 मैकेनिज्म, एंड तीनों ही मैकेनिज्म ऑफनली यूज होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 3 मैकेनिज्म एंड यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको समझ आया होगा कि व्हाट आर द मूवमेंट, इनका डिस्क्रिप्शन में क्या याद रखना है, एंड एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर। सो एपिबोली means ectoderm formation, delamination means splitting of cellular cells, ingression means migration, involution means inward movement, and invagination means infolding. इफ़ यू विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे आपको ये टर्म डेफिनेटली मिलेगा। थ्रू दैट यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस और यू कैन आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, you can let me know in the comment section, and thank you for watching this video.